વજન ઉતારવું છે તો ફટાફટ જ ઉતારી દેવું પડે ને તરત। आपने तो सुना ही होगा, दुर्घटना से देर भली। तो कोई भी काम बहुत जल्दी में किया जाना तो उसका नुकसान होता है। अगर आप सस्टेनेबल तरीके से वजन कम करना चाहते हैं तो स्लो एंड स्टीडी ही कम करना सही रहेगा। મારે જો વજન ઉતારવું છે તો ખાંડ તો બિલકુલ બંધ જ કરી દેવી પડે ને। खांड मतलब शुगर, और हमारी बॉडी को एनर्जी शुगर से मिलती है। अगर आपने उसे बंद कर दिया तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो रिफाइंड शुगर की जगह नेचुरल शुगर को रिप्लेस करेंगे तो आपकी वेट लॉस में हेल्प होगा। તો કોલ્ડ ડ્રિંક અને પેલા પેકેજ ફૂડ્સ તો બંધ કરી જ દેવા પડે ને વજન ઉતારવા માટે। अगर वजन नहीं भी कम कर रहे हैं ना तो कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड को तो ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वजन तो बढ़ता ही है, बीमारियां भी आती है। મને એક્સરસાઇઝ કરવાનો સખત કંટાળો આવે છે, પણ પછી હું ખાવામાં કંટ્રોલ કરીશ તો બી વજન તો પ્રોપરલી ઉતરી જ જશે ને। खान पान को कंट्रोल करके, डाइट करके आप वजन तो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक फिट बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए तो एक्सरसाइज भी जरूरी है। ડાયાબિટીસ કે બ્લડ પ્રેશર હોય તો એક્સરસાઇઝ ના કરી શકીએ ને। ऐसा सोचना आई थिंक गलत होगा, क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। થાઇરોઇડ, બ્લડ પ્રેશર કે પછી ડાયાબિટીસ એક વખત થઈ જાય તો આખી જિંદગી એની સાથે રહેવું પડશે। ये तो सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये आपके लाइफस्टाइल को गलत करने से आई है, तो लाइफस्टाइल को सही करने से ये वापस भी जा सकती है। એટલે પાછા રિવર્સ થઈ શકે છે, કઈ રીતે અને મારે શું કરવાનું રિવર્સ કરવા માટે? बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, और इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ये सारी बीमारियां रिवर्स कर सकते हैं। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર। તમે અગર એક વાત કહું રેગ્યુલરલી જોતા હશો તો તમે નોટિસ કર્યું હશે કે મારું વજન પણ ઓછું થઈ રહ્યું છે। કેમ? કારણ કે આટલા બધા એક્સપર્ટ્સને હું મળું છું, હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ તરફ હું પણ આગળ વધી રહ્યો છું, બટ વજન ઉતારવાને લઈને હજુ પણ ઘણી બધી ગેરમાન્યતાઓ મને છે અને ઘણા બધા લોકોને પણ હોય છે। આ ગેરમાન્યતાઓ દૂર કરવા એના સિવાય ઘણા બધા એવા લાઈફસ્ટાઈલના રોગ છે જે રોગને આપણે રિવર્સ કરી શકીએ છીએ। એ રિવર્સ કઈ રીતે કરવા એને લઈને મને ઘણા બધા પ્રશ્ન છે, અને પ્રશ્ન પૂછવા માટે એક બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ આપણી સાથે જોડાયા છે। કોણ જોડાયા છે? તો વંદના ગુપ્તા जी। થેન્ક યુ સો મચ મેમ हमको समय देने के लिए। એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું એ પહેલા કહી દઉં છું કે એમને ગુજરાતીમાં ફાવટ થોડી ઓછી છે, પણ હિન્દીમાં આપણી ફાવટ સારી છે, એટલે હું સવાલ ગુજરાતીમાં પૂછીશ, એ આન્સર હિન્દીમાં આપશે। સમજી જજો, ના સમજો તો કમેન્ટમાં મને પૂછજો, હું તમને જવાબ દઈ દઈશ। હવે મેમનું ઇન્ટ્રોડક્શન અગર આપું ને તો મેમનો 15 વર્ષથી વધુ એક્સપિરિયન્સ છે આપણા દેશની એક લીડિંગ પબ્લિક સેક્ટર બેંક ઓફ બરોડામાં HR ડિપાર્ટમેન્ટમાં। પણ આ બધું છોડીને મેમ આજે એક ડાયટિશિયન, ફૂડ એન્ડ હેલ્થ એક્સપર્ટ બની ગયા છે, કારણ કે એમણે ઘણા બધા લોકોના જીવન બદલ્યા છે। પોતાનું તો બદલ્યું છે, એમના સિવાય એમણે એટલા બધા લોકોના ડિસીઝીસ રિવર્સ કર્યા છે। એટલે થાઇરોઇડ, ડાયાબિટીસ ટાઈપ 2 અને બ્લડ પ્રેશર જેવા રોગ એમણે રિવર્સ કરેલા છે। એના સિવાય એમનો મોટિવ છે કે ભારતમાં દવાઓનો વપરાશ ઓછો થવો જોઈએ, લોકોના જીવનમાંથી દવાઓ નીકળવી જોઈએ। એમનો મોટો પણ એમણે મને કીધો છે કે એમને ભારતને તંદુરસ્ત ઇન્ડિયા બનાવવું છે, ને એ નામથી જ એમની એક યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે। હવે એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન તો મળી ગયું તમને, પણ પહેલો પ્રશ્ન હું મેમને એ પૂછવા માંગીશ કે કેમ એવું થાય છે કે ઘણી વખત ઘણા લોકો ફટાફટ વજન વધારી દે અને ઘણા લોકોને સેમ વસ્તુ ખાવાથી વજન એટલું ફટાફટ ના વધે? तो जैसे कि आप देखें, एक इंसान को कभी आप गौर से देखो तो उनकी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, हर किसी को दिया है कुदरत ने, लेकिन हर किसी का चेहरा बिल्कुल अलग अलग है ना, कोई एक जैसा सिमिलर नहीं दिखता। वैसे ही हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो भी अलग अलग है, हमारी लाइफस्टाइल अलग अलग है, हमारे खाने पीने का चॉइस अलग अलग है, और हमारे रहने का तरीका अलग है। तो इसीलिए कोई किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, किसी का लो होता है, और हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है उनके लाइफस्टाइल और खान पान से। इसीलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, कुछ बहुत लीन होते हैं, और कुछ मेंटेन रखते हैं। હવે આમાં તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકો કે આવા લોકોનું વજન ફટાફટ વધશે ને આવા લોકોનું? बिल्कुल, देखो कुछ लोग हैं ना जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप देखें तो पूरे दिन बैठ के सिस्टम में, जैसे मैं बैंक में जॉब करती थी तो बैंक में बहुत टाइम तक सिटिंग जॉब होता है, और अगर इसी बीच में आप पूरे टाइम तक बैठे हुए हैं, घंटों तक बैठे हैं, तो आपका टमी फैट बढ़ने के चांसेस होंगे। आपने पानी नहीं पिया क्योंकि आप वर्क में इतने ज्यादा प्रेशर में हो कि आप पानी पीना ही भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने बैंक में भी देखा था, बॉटल तो लेके आते थे, एज इट इज बॉटल वापस घर जाता था, तो वो पानी का इंटेक भी कम होता है, तो जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव होती है, जैसे घूमने फिरने, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं जो बाइक चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, इधर उधर मिलते हैं लोगों से, उनकी थोड़ी कंपैरेटिवली आप देखोगे तो वेट कम होगा। और या फिर आप घर में हाउसवाइफ्स हैं, पूरे दिन काउच पोटैटो बन के मूवी देख रहे हो, साथ में आप जब मूवीज देखते हो तो अक्सर ऐसी चीजें खाते हो जिसमें सोडियम, हाई सोडियम होता है आपको, तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है या फिर हाउसवाइफ्स होते हैं जो काउच पोटैटो बने और उस टाइप पे अनहेल्दी चीजें ही खाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम ऐसे ही डिमांड करती है। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन में रहते हो, टीवी देखते हो और आप बैठे ही रहते हो बहुत टाइम पे,
तो इस ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सिटिंग जिनका जॉब होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उनका वेट ज़्यादा रहता है, और जो थोड़े एक्टिव होते हैं उनका वेट थोड़ा कम होता है. એટલે હું સમજી ગયો, પાણી ઓછું પીશું, હલનચલન ઓછી કરીશું, સેડેન્ટરી લાઈફસ્ટાઈલ હશે અને વધારે સોડિયમ વાળા પેક્ડ ફૂડ ખાઈશું, રિફાઇન્ડ વસ્તુઓ વધારે ખાઈશું તો વજન વધારે વધી જશે. એના સિવાય મારે અગર મારું વેટ ગેઇન કંટ્રોલ કરવું છે, મારો વજન ના વધે એવું મારે ધ્યાન રાખવું છે, તો બીજી કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખી શકું? अगर आप सच में वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका माइंडसेट आपको करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना अपने उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, मतलब खाना, लेट तक सोना. तो आपका लाइफस्टाइल करेक्ट करना बहुत जरूरी है. सुबह जल्दी उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पानी पीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए. और साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो वेट लॉस बहुत आसानी से होता है. તો તમે કીધું કે ટાઈમસર ખાવું જોઈએ, તો એ સાચો ટાઈમ અને એનું સાચું ખાવાનું એ હોય શું? तो हमें कुदरत ने जब बनाया था ना, तो कुदरत ने पिज्ज़ा, मोमोज और ये सब जो हम स्ट्रीट फूड देखते हैं वो साथ में नहीं भेजा था, वो हमने धीरे धीरे डेवलप कर दिया. तो कुदरत द्वारा पकाया हुआ खाना अगर हम खाते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी रहता है. साथ ही टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. स्पेशली आपने ये कहावत सुनी होगी कि सुबह का खाना लाइक अ किंग. अब लाइक अ किंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ खानी है. लाइक अ किंग मतलब क्वालिटी ऑफ फूड, फूड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट जिसमें बहुत भरपूर मात्रा में हो. तो सुबह का खाना हमारा स्पेशली ब्रेकफास्ट होना चाहिए. मैं स्पेशली अपने बारे में बताऊं तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था, बीइंग अ बैंकर, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देती थी. आई वॉज वेरी मच ओवरवेट. मैं 88 kg तक पहुंच गई थी और वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी. और उसमें एक चीज़ यही था कि सुबह का खाना नहीं खाएंगे तो चलो वजन थोड़ा कम होगा. लेकिन सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट मील, और ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं. तो सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. लंच आपका लंच होना चाहिए लाइक अ मैन, और आपका डिनर जो है ना वो होना चाहिए लाइक अ बेगर, मतलब डिनर बहुत लाइट. हमारे बहुत सारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमारे बहुत सारे धर्म में भी आप देखेंगे रात का जो डिनर है ना उसको बोला जाता है सनसेट से पहले खाने के लिए. लेकिन आजकल के जो लाइफस्टाइल ऐसी है, वर्किंग लोग हैं तो 7-8 बजे तक तो ऑफिस में रहते हैं, नहीं पॉसिबल है उतना. तो हमें एटलीस्ट इतनी कोशिश करनी चाहिए कि रात में सोने से 2.5 घंटे पहले आप अपना खाना खाएं, और रात को एकदम सोने के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पानी भी ना पिएं. इससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, और जब नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारा बॉडी का जो फैट बर्निंग हार्मोन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, जो मोटापा को बढ़ाता भी है, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको स्लो डाउन भी कर देता है. तो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने बॉडी के सिस्टम के हिसाब से अगर हम खाते हैं हेल्दी फूड, पैक्ड फूड और रिफाइंड फूड को तो बिल्कुल भी ना बोल देना चाहिए. तो जितना ज़्यादा हो सके હેલ્ધી ફૂડ को ही अपनाना चाहिए. હવે મેમ આગળ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પૂછું ને એની પહેલા હું કહેવા માંગુ છું કે મેમ જોડે મેં તમારા વતી નેગોશિએટ કરી દીધું છે, અને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે વોટ્સએપ નંબર ઉપર તમે કોલ કે વોટ્સએપ કરશો તો મેમ તમને 3 દિવસનું ફ્રી વેટ લોસ કન્સલ્ટેશન આપશે. અને એ વેટ લોસ કન્સલ્ટેશનમાં શું થાય છે ને એ હવે હું પૂછવા માંગુ છું કે મેમ અગર તમારી જોડે કોઈ કન્સલ્ટેશન માટે આવે તો તમે એમને કઈ રીતે હેલ્પ કરો છો? हमारे पास जो लोग आते हैं स्पेशली वेट लॉस के लिए और हेल्थ इश्यूज को ही लेकर आते हैं, तो हम 3 दिन आपके ऑडियंस के लिए फ्री कंसल्टेशन करेंगे. 3 दिन में 2 दिन हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको कुछ टास्क दिया जाएगा जो उनको कंप्लीट करना है, और तीसरे दिन उनके जो टारगेट है, उनका जो गोल है हेल्थ को लेके, उनका प्लान हम प्रोसेस करते हैं, और 30 डेज का उनको हम प्लान देंगे जिसपे वो चलेंगे, और उसके बाद उनका हेल्थ रिजल्ट आता है. ये हम अपने लोगों के साथ करते हैं, और इसी प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आया है. વાવ, बहुत सारे लोगों का बदलाव आ गया है, અને તમારો લાવો છે તો તમે વોટ્સએપ કરી દેજો. હવે મેમ થોડા ટાઈમ પહેલા તમે મને કીધું હતું કે એક સાથે બહુ જ બધું વજન ઉતરવું ના જોઈએ, तो 1 મહિનામાં કેટલા વજનનું ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ? बहुत ज़्यादा अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो वो नुकसानदायक होता है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. बहुत ज़्यादा अगर एक टाइम में आप वजन कम कर लेंगे तो आपका सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होगा, और फिर से वापस रीगेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एक टाइम में आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का आइडियल वेट क्या है. अगर आप पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पता कर सकते हैं, और आपको किस टारगेट तक पहुंचना है, क्योंकि हमें किस रास्ते पे जाना है. रास्ता तो पता है हेल्दी फूड और लाइफस्टाइल करेक्शन, लेकिन कहाँ जाना है ये भी पता होना चाहिए. तो कितना वेट लॉस करना है ये भी हमें पता होना चाहिए. मिनिमम अगर आपका जर्नी है 20 kg या 10 kg वेट लॉस है तो उसको मंथ में आप डिवाइड कर लें. 1 महीने में 2 से 3 किलो वजन तक कम करना बहुत सही होगा, क्योंकि उसको आप लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हैं. મહિને 2-3 કિલો ઓછું કરવું જોઈએ વજન. પણ હું તો ઘણા લોકોને એવા બી મળું છું કે એ મને ખબર છે શું કે મેમ કે યાર નહીં ઉતારવું મારે વજન, હું કેમ વજન ઉતારું?
तो ये वजन उतारवानी जरूरत केम पड़े? वजन उतारने को मतलब एक बात मुझे याद आ रही है कि जो एक आपने सुना होगा ना, जो अपने परिवार से करे प्यार वो अपनी सेहत से कैसे करे इनकार। अगर आप अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करते हैं ना, तो आपको आइडियल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं एक बैंक में जॉब करती थी, तो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज को बताती थी कि आपका रिप्लेसमेंट आपके ऑफिस में है, लेकिन आपका रिप्लेसमेंट आपके घर में नहीं है। अगर आप एक दिन ऑफिस नहीं जाओ तो बैंक बंद नहीं होगा, लेकिन एक दिन अगर आप घर में नहीं रहे तो आपके घर वाले, आपके परिवार वाले कितना ज्यादा आपके लिए डिस्पर होंगे। अगर आपके बिना उनकी लाइफ, उनकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो अपने लोगों के लिए आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और हेल्दी रहने के लिए वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओबेसिटी आजकल एक पैंडेमिक की तरह होता जा रहा है, और ओबेसिटी की वजह से सिर्फ ओबेसिटी आपका लुक खराब नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, आपको फैटी लीवर होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक का बहुत ज्यादा खतरा, ऐसी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज आपको घर कर सकती है, और जो आपके परिवार के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आपको तो शायद हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं, लेकिन जो वो ट्रॉमा आपके घर वाले झेलेंगे और जो आपके परिवार वाले वो तकलीफ झेलेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए वेट लॉस करना तो बहुत ही जरूरी है। એટલે આ વજન વધવાને લીધે જે રોગ થાય છે, એટલે તમે જે કીધું ફેટી લીવર, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ કે પછી હાર્ટ સ્ટ્રોક એટલે હૃદયની તકલીફો, આ બધા જે છે એને લાइफस्टाइल डिसीज કહેવાય ને? ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आप मान लो गुंज जी, आपका एक हार्ट जो है, हार्ट का वेट कितना होता है? 250 ग्राम। उसके ऊपर 10 किलो कुछ रख दो, आपके ऊपर आपका वेट मान लो 70 है ना, अभी आपके ऊपर मैं 200 किलो का कुछ वजन रख दूं, आप कैसे सांस ले पाओगे? आप कैसे आप अपना फंक्शन कर पाओगे? लाइकवाइज हमारा हार्ट 250 ग्राम का है, उसके ऊपर 500 ग्राम का फैट रखा हुआ है, 5 किलो का फैट रखा हुआ है, जो ना हमारा वाइजरल फैट जो हमारे लंग्स, लीवर, हार्ट के ऊपर होता है, उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है। तो वो उसको वहां से हटाना है। वो फ्रेश होके काम नहीं कर रहा, आपका लंग्स फ्रेश होके सांस नहीं ले पा रहा। आप तो अपनी तकलीफ बता देते हो, थोड़ा सा भी हमें चोट लगता है, हाय चोट लग गई, चोट लग गई, लेकिन बेचारा हार्ट आपको आके बता पा रहा है क्या कि भाई मेरे ऊपर 5 किलो का वजन रखा है, हटाओ इसको, मैं पंप नहीं कर पा रहा हूँ। आपका लंग्स बता पा रहा है कि मेरे ऑक्सीजन ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कम प्रेशर में हूँ, वो नहीं बता पा रहा है। उसको समझना पड़ेगा। जब हमें कुदरत ने पैदा किया ना, आप कोई भी डिवाइस लेकर आते हैं घर पे तो आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, लेकिन जब हम धरती पे आए थे तो हमें कोई यूजर मैनुअल नहीं मिला था। हमारा यूजर मैनुअल हमारे अंदर है, हमारे इनसाइड है, जो हमें समझना होगा कि हाँ जब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा करना चाहिए। इसलिए हमारा वजन कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज जो लाइफस्टाइल खराब करने से आया था, तो लाइफस्टाइल करेक्ट करने से ये वापस रिवर्स भी हो जाएगा। હવે આ એક રોગ કઈ રીતે રિવર્સ કરવાનો ને એનો પ્રશ્ન હું મેમને પૂછું છું। તમારે કોઈ પર્સનલ પ્રશ્ન છે ને તો સ્ક્રીન ઉપર મેમનો વોટ્સએપ નંબર દેખાય છે, એના ઉપર મેસેજ કરીને તમે ડિરેક્ટલી પણ પૂછી શકો છો। પણ જેનેરિક ક્વેશ્ચન માટે હું પૂછવા માંગુ છું કે આ રોગ રિવર્સ થઈ શકે ખરા? यस, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। તો પછી થાઇરોઇડ કઈ રીતે રિવર્સ થાય? थायराइड क्या है? थायराइड एक हार्मोन है जो हमारे यहाँ से थायराइड ग्लैंड से इश्यूज होता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जब बॉडी को सिग्नल देता है उस ग्लैंड को, उसको बोलता है, वहां से थायराइड रिलीज होता है। जब ये सिग्नलिंग सिस्टम खराब होता है ना, तो या तो ब्रेन बोलता है कि अभी बॉडी में जरूरत नहीं है, फिर भी वो एक्सेसिव रिलीज हो रहा है, या कम हो रहा है तो बोल रहा है अभी जरूरत है और वो बोल रहा है कि ज्यादा है तो वो एक्सेसिव नहीं रिलीज कर रहा है। तो ये 2 तरह के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, और ये हमारे सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने की वजह से होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिस्टम खराब हुआ है बॉडी का, उसको करेक्ट करें। तो जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, हम अपने फूड हैबिट को, सोने के टाइम पे सोना, खाने के टाइम पे खाना, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, मतलब जो बचपन से हमें सिखाया गया है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सोना, सही खाना, हेल्दी फूड, और ये सारे लाइफस्टाइल को करेक्ट अगर हम कर लेते हैं तो ये सिस्टम हमारा सही हो जाता है। क्योंकि बॉडी को बनाया ही इसीलिए ऐसा गया है कि वो आइडियल हेल्थ और आइडियल शेप को मेंटेन करे। हमें से कोई 50 किलो का पैदा नहीं हुआ था, है ना, मैं 2-2.5 किलो के ही हम सब पैदा हुए थे, लेकिन हमने अपने लाइफस्टाइल को खराब करके अपना वजन भी बढ़ाया, हमारे सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर लिया, और इसको करेक्ट करके इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने देखे हैं, और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस आपको फोकस्ड होना है और अपने कोच की बात मानिए। कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें बचपन से पता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ईट हेल्दी, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन आज के ज़माने में कौन इसको फॉलो कर पाए? तो फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको फॉलो कर रहे होते तो आज इतने सारे हार्ट अटैक्स नहीं होते। आज इंडिया हार्ट अटैक और डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है। हर दूसरे दिन लोग मतलब हर सेकेंड हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, और ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो ये सब करेक्ट किया जा सकता है अगर आप
सही गाइडेंस से सही चीज को फॉलो करें। तो आपने बताया इंडिया डायबिटीज का कैपिटल हो रहा है, हार्ट अटैक का, तो अगर टाइप 2 डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, उसको भी ये सेम चीजों को फॉलो करके रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल गुंजी, किया जा सकता है। अगर सही गाइडेंस से, सही लाइफस्टाइल को, सही डाइट को फॉलो किया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों को भी रिवर्स किया जा सकता है, जिसके लिए साइंस अभी रिसर्च ही कर रही है। क्योंकि मेरा मानना है जो ह्यूमन बॉडी है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, क्रिएटेड बाय गॉड, है ना। भगवान ने सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन किया। अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चल ही रहे हैं हमारे साइंस में। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन उसका जवाब हमारे अंदर है। तो उसे अगर हम ऊपर निकाल लें, उसको हम समझ लें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों, टाइप 2 डायबिटीज, बीपी, थायराइड, इन सारी बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। आपको जितने लोगों ने आज तक कंसल्ट किया है, उनमें से किसी का डिसीज आपने रिवर्स किया है क्या? यस, बहुत सारे हैं। सो मैनी, मेरे बहुत सारे कलीग हैं जो सालों से मेडिसिन ले रहे थे, बीपी की और शुगर की, उन्होंने रिवर्स की है। मेरी खुद की सिस्टर ने थायराइड की मेडिसिन रिवर्स की है। मेरे बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने बीपी एंड शुगर की रिवर्स की हैं। लेकिन बस मैं विथ ऑल डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगी कि ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि पहला तो उनका डेडिकेशन, उनका माइंडसेट था कि उनको करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है और एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए। तो મને જેટલા પ્રશ્ન થતા હતા મેં તો તમને પૂછી લીધા છે, બટ છેલ્લે હું ખાલી એક એડવાઇસ માંગવા માંગુ છું કે તમે અત્યાર સુધી જેટલું કીધું એના સિવાય બીજી શું એડવાઇસ તમે આપશો બધાને? एडवाइस तो यही है कि स्टार्ट सिंपल, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है वेट लॉस को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, मुझे तो वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा हाइप बना देते हैं, जिसकी वजह से और वेट लॉस कम होने की वजह से ना आपका कॉर्टिसोल और रिलीज हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी चीज़ का, और फिर आपका वेट बढ़ने लगता है। तो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है, स्टार्ट सिंपल, बी कंसिस्टेंट एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही गाइडेंस लीजिए, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करना है, एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहिए। वो कहते हैं ना, एक रस्सी भी एक ही चीज़ पे लगातार वार करती रहती है तो पत्थर पे भी लकीर बन जाती है। तो सेम एक चीज को फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। એટલે તમે આજે મને જેટલી વસ્તુઓ કીધી ને એમાં ઘણી બધી નવી વસ્તુઓ મને જાણવા મળી છે, તમને બી નવું કંઈક જાણવા મળ્યું જ હશે। સિમ્પલ સ્ટાર્ટ કરજો, દર મહિને 2-3 કિલોથી વધારનો ટાર્ગેટ નહીં રાખવાનો। બાકી કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય છે તો કમેન્ટમાં તમે પૂછી શકો છો કે પછી વંદના મેમને ડિરેક્ટલી સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરીને પૂછી શકો છો। મેં એમને પૂછી લીધું છે, આ નંબર શેર કરવાની મંજૂરી એમણે આપી દીધી છે। તમે આ વિડીયોમાં જોડાયા અને ઘણી બધી નવી ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી હશે। આવી જ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ જોવા માટે એક વાત કહું, જોતા રહેજો VTV ડિજિટલ પર। આપણે ફરી મળીશું। વંદના મેમને આપણે સૌ થેન્ક યુ કહી જ દઈએ। થેન્ક યુ સો મચ મેમ।